جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا۔ ہیلو فرینڈ، السلام علیکم، میں ہوں شاداب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ریئیکشن چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج جس ویڈیو پہ ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے مسلمان بھائیوں نے دنیا کو ٹیکنالوجی میں کیا کیا دیا، سنیں۔ نیو تقریر مفتی سلمان اظہری صاحب۔ تو اس کو بیان کیا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب نے، جو کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں بیان ہے اور مسلمانوں نے دنیا کو کیا کیا دیا ہے، اس پہ آج گفتگو کریں گے مفتی سلمان اظہری صاحب نے۔ اس سمے مسلمانوں کو دنیا میں یا کچھ دیشوں میں سمجھ لیجیے نہ کے برابر سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی قابل نہیں ہیں، یہ کسی کام میں ماہر نہیں ہیں، اور ان کو مطلب کئی جگہوں پہ کام وغیرہ بہت ہی مشکل سے ملتا ہے اور بہت ہی مشکل سے دیا جاتا ہے۔ تو باقی دنیا میں ماشاءاللہ سے 57 دیشوں میں مسلم جس طرح سے چھائے ہوئے ہیں، کیا وہاں پہ وہ کام نہیں کرتے؟ پوری حکومت کا نظام وہی چلاتے ہیں، یا پوری جتنی بھی وہاں پوری دیش کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے سارا وہی دیکھتے ہیں۔ تو باقی جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے مسلمانوں نے ہی دنیا کو بنایا، بدلا، اور تمام چیزوں میں مسلمانوں کا بہت بڑا یوگدان رہا۔ آج بھلے ہی ان کو نام کو بھلا دیا گیا ہے اور دوسرے لوگوں کا نام نقل کر کے اس پہ لگا دیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیے زیادہ بنا بات کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کا اوریجنل لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو چینل پر ہمارے نئے ہیں وہ چینل کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے۔ سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں۔ 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی۔ آپ کو کیا خبر، آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے، اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے۔ جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا۔ اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا۔ دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا۔ ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا۔ ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان۔ اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی، یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے،
इल्म तिब में, मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला मुस्लिम आलिम दीन अबू बकर ज़करिया राजी, जिन्होंने आज से कई 100 साल पहले लोगों को तस्वुर दिया इल्म तिब का। सर्जरी के मामलात पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं थे। सबसे पहले अबू बकर राजी ने सर्जरी के तरीके बताए, हॉस्पिटल का निजाम बताया कि हॉस्पिटल कहां बनाया जाए। बगदाद में उन्होंने खलीफा से कहा कि गोश्त के टुकड़े काट करके हर मोहल्ले पर लटकाए जाएं, एक एक लकड़ी में लटकाए गए 10-12 मोहल्लों में, और 3 दिन के बाद वो निकालने लगवाए। इमाम राजी ने देखा कि जो गोश्त का टुकड़ा सबसे लेट खराब हुआ या सूखा, बहुत सारे तो सड़ गए सूख गए, जो बहुत देर तक सही सलामत था, अबू बकर राजी ने कहा यहां हॉस्पिटल बनाया जाए। कहा क्यों? कहा यहां की आबो हवा जिस्म को जल्दी खराब नहीं होने देती, मरीज को ऐसी जगह रखा जाए जहां की आबो हवा उसके जिस्म को सलामत रखे। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अबू बकर राजी ने, जब उनकी उम्र 33 साल की थी। 33 साल की उम्र में बड़े से बड़ी दुनिया को इन्होंने फार्मूले पेश किए। एक दो नहीं मेरे अजीजों, इब्न साआती, लक़ब साआती खुरासानी, एक मशहूर साइंसदान, मिस्र के रहने वाले, और आज से तकरीबन 1200 साल पहले की बात बता रहा हूं, खलीफा हारून रशीद के जमाने, तब इस साइंसदान ने हाथ की घड़ी इजाद की और पूरा प्लैनेट सिस्टम देखने का तरीका इजाद किया। सैयारे गर्दिश कहां करते हैं, ग्रेविटी सिस्टम जो बाद में न्यूटन के लिए पेश किया गया, यह सबसे पहले मुस्लिम आलिम दीन ने पेश किया, कशिश सिकल जिसको कहते हैं। और सबसे पहले अबू बकर राजी ही हैं जिन्होंने केमिकल की दुनिया में सबसे पहले एसिड तैयार किए, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आज कीमिया में बुनियाद की हैसियत रखता है। ये तमाम चीजें दुनिया को देने वाले वो मुस्लिम साइंसदान थे। मेरे अजीजों, मैं इनकी मिसालें सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूं कि दुनिया में ये तरक्कियात और दुनिया में जीने के सलीके इस्लाम ने और मुसलमानों ने दिए, आज पूरा का पूरा पलट दिया गया और तुम्हें इतना पीछे धकेल दिया गया कि आज दुनिया तुम्हें तहजीब सिखाने आ रही है। आज तुम्हें मैनेजमेंट डेवलप करने के लिए तरीके सिखाए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गुलामी के अंदाज में तुम सीखने के लिए गैरों के दरबार में जा रहे हो। ऐ मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ा जो हमारे पास नुकसान हुआ है वो हमारे बच्चों को हमारा माजी ना पढ़ाना, हमारी तारीख ना पढ़ाना। चंद साल और तुम इस तरह आंख बंद करके बैठे रहो, तब उसके बाद बच्चों का हाल ये होगा। ये मुस्लिम साइंसदान तो भुला ही दिए गए हैं, ये तो कहां मालूम है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, ये तो भुला ही दिए गए हैं। औलिया इकराम भी भुला दिए जाएंगे, तारीख खत्म की जाएगी, और चंद दिनों के बाद मैं बारह ये कहता हूं, शायद बच्चे बाद में ये भी पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब इस तरह हम तारीख से अपनी आंखें बंद करके बैठे और सारा का सारा हमारा वक्त इसी मोबाइल इंटरनेट पर गुजरे, जो फजूल और फहश चीजों को देखने में, ऐ मेरे अजीज बच्चों, आज अपनी जिंदगी की कदर और कीमत समझो और बाज आ जाओ। तुमसे सवाल होगा तुम्हारी जवानी के मुतालिक। तुम यहां पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हो, उसी चीज में अभी खरे नहीं उतर सके, इसी में बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। इसीलिए शायर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये एक इस्तिगासा के तौर पर यूं कहा था, ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो पूरी दुनिया को क़ियादत सिखाने के लिए निकला था इस्लाम, वो आज अपने ही देश में गरीबुल गुरबा है। आज जितने मुस्लिम ममालिक हैं वहां की भी हालात यही हैं कि उनके यहाँ गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, न जाने क्या क्या मादनियात हैं, लेकिन निकालने वाले यूरोपियन हैं, अमेरिकी हैं। इन पर इजारादारी पूरी बाहर की कंपनियों की है। क्या हम इस कदर आज इल्म से और अपने मकसद जिंदगी से बिछाड़ दिए गए? ऐ मेरे अजीजों, मैं पढ़ रहा था यहूदियों के मुतालिक, बरसों गुजर गए, 1400 साल हो गए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को। बाज़ उलमा भी इसको रिजेक्ट करते हुए आज अलग अंदाज से बोलने की कोशिश करते हैं। हुजूर ने फरमाया था, अपने बच्चों को निशानाबाजी सिखाओ,
तीर अंदाजी सिखाओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में इन्हें घुड़सवारी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। और एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ये 3 चीजें सिखाने के लिए फरमाया गया। आपके बाद जब ये बात कही जाए तो ये घोड़ों का जमाना नहीं है, मर्सिडीज कार का जमाना है। अब तीर अंदाजी का जमाना नहीं, अब तो बम बारूद पेट्रोल मिसाइल का जमाना है। ठीक है, जदीद दुनिया में तुम ये जवाब तो दे सकते हो, लेकिन आज ही की बात मैं बताऊं, इजराइल में आज भी यहूदियों को देखा गया, वहां पर 6 साल के बच्चे को कंपलसरी निशानाबाजी सिखाई जाती है, जबकि उनको मालूम है यह जमाना तीर अंदाजी का नहीं, लेकिन निशानाबाजी क्यों सिखाई जा रही है? घुड़सवारी आज भी सिखाई जा रही है इजराइल में, आज भी। क्या उन्हें नहीं मालूम? वही कारों की इजाद करने वाले लोग हैं बहुत सारे। अजीजा ने गिरामी वकार, मैंने ये महसूस किया दुनिया की दूसरी कौमें मेरे नबी के फरमान के मकासिद समझ गई और वो हल करने पर अपने बच्चों को आमादा कर लिया, और हम तरक्कियात के नाम पर अपने ही नबी के फरामीन को पीछे छोड़ते चले गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बयान किया है हज़रत ने, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और बहुत ही नॉलेजफुल बातें जो आपको शायद या हमें भी नहीं मालूम थी, तो जिस तरह से हम तक इन्होंने पहुंचाया है, और मुसलमानों के हालात जिस तरह से इतने बदतर हैं, उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है, वो भी बताया है, और किस तरह से उस पर काम किया जा सकता है, उस पर जो है सुधार किया जा सकता है। तो ये तो तमाम मुसलमानों का मतलब अपना अपना फ़राइज़ अंजाम देने का वक्त है, और उस पर गौर करने का वक्त है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो में जो बातें आपको अच्छी लगी हों वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं वैसे वीडियो का भी आप कमेंट करिएगा, हम पूरी बनाने की उस पर पूरी कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से मुफ्ती सलमान जहरी साहब ने वीडियो में बताया कि मुसलमानों ने किस तरह से दुनिया को एक अलग मुकाम पे, एक अलग ऊंचाई पे लेके गए थे, बताया जिस तरह से कि हॉस्पिटल अगर बनाना होता था तो जगह का चुनाव होता था, जिसमें से 7-8 जगह चुन ली जाती थी, और वहाँ गोश्त के लुथड़े टुकड़े लगा दिए जाते थे। मतलब हर जगह पे थोड़ा थोड़ा गोश्त का टुकड़ा लगा दिया जाता था, लटका दिया जाता था, रख दिया जाता था। उसके बाद 3 दिन बाद उसे चेक किया जाता था, जहाँ का गोश्त का टुकड़ा 3 दिन बाद सबसे कम ख़राब रहता था, वहाँ पे हॉस्पिटल की बुनियाद रखी जाती थी, वहाँ बनाया जाता था। तो ये सोच थी मुसलमानों की, और इस तरह से दुनिया में मुसलमानों ने इनकलाब लाया था, और पूरी दुनिया को मतलब तरक्की की तरफ ढकेल दिया था। और आज क्या हालात है वो तो सबको पता है, सब जानते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।